everyone, I am Dhruvisha. Today I am going to explain you diamond bead and enamel work from 10th history chapter to cultural heritage of India. So let's start. First of all, it's important to know that our country India has a long coastline of 7517 km surrounding all the three directions east, west and south. As a result, diamonds and beads are easily founded. So, as India is fond of using gems and diamonds since ancient times, we traded them with various countries through sea route. Also, the diamond-studded ornaments were in great demand in foreign countries. India was home to some of the biggest and rarest diamonds, including the well-known Kohinoor and Great Mughal. Diamonds, rubies, beads, emerald, and topaz were used in making of crowns and thrones to beautify them. Also, Gujarat is quite famous for beadwork. Bead torans, pachit pots, chakda, a traditional wall piece, decorative coconut, indoni, modia, animal bag cover, etc. The artistic skill of inlaying bright colors like red, green, and blue in ornaments like earrings, bangles, rings, necklace, etc. India is only country in world where expertise can be seen in enamel work, especially in Jaipur, Delhi, Lucknow, Varanasi, and Hyderabad. Thank you. Hello, my name is Archie and today we'll talk about Jari work. It is also known as Zari work. This work is made by a thread. This is a traditional work done by gold and silver strings of a silk cloth. Generally, the work includes different types of patterns and elaborate designs of embroidery called zardoshi. तो जरी वर्क को जरी वर्क के नाम से भी जाना जाता है. जरी वर्क एक थ्रेड से सिल्क क्लॉथ पे एम्ब्रॉयडरी करके साड़ी बनाई जाती है ये वर्क की. अगर हमें ट्रेडिशनली करें तो इसमें गोल्ड और सिल्वर मेटल्स की स्ट्रिंग्स का भी यूज़ करके हम एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं. ये वर्क में हम बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स और डिज़ाइंस एलेबरेट करके साड़ी पे करते हैं. मैन्युफैक्चर ज़ारी इज़ बेसिकली बोरकेड. बोरकेड का मतलब क्या है? बोरकेड एक क्लास है जहाँ पे बहुत ही हाईली एम्ब्रॉयड्रेड फैब्रिक्स आते हैं वो क्लास में. ज़ारी भी वो क्लास में आता है. तो ज़ारी इज़ बेसिकली बोरकेड ऑफ टेंसिल थ्रेड meant for weaving or covering a flattened metallic stick made from pure gold, silver or slit. तो ज़री कैसे करा जाता है? तो ज़री एक टेंसिल थ्रेड से करा जाता है. तो टेंसिल थ्रेड जो हम मेटल यूज़ कर रहे हैं वो एम्ब्रॉयडरी करने में, गोल्ड, सिल्वर या स्लिट, तो थ्रेड वो मेटल की स्टिक के ऊपर हम कवर करके फिर हम वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं. दिस वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: रियल ज़री, इमिटेशन ज़री एंड मेटालिक ज़री. रियल ज़री. व्हाट डू वी मीन बाय रियल ज़री? Real zari is made from fine threads which is flattened by passing it under through equal pressure rotating rollers. The flattened silver or golden threads are wound on the base yarn that is usually made of silk. तो रियल ज़री कैसे करते हैं हम? तो जो हम टेंसिल थ्रेड यूज़ करते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया वो हम जो हम मेटल यूज़ कर रहे हैं वो थ्रेड हम गोल्ड मेटल की स्टिक के ऊपर कवर करके उसको रोटेटिंग रोलर्स में से पास करते हैं. क्योंकि वो जो मेटल की स्टिक है वो बहुत थिक है एंड इट्स स्टिफ, तो हम उससे एम्ब्रॉयडरी नहीं कर सकते. तो हम उसको रोलर से पास करके उसको पतला करते हैं ताकि हम उसको एम्ब्रॉयडरी करने में यूज़ कर सकें. और यहाँ पे बेस यार्न का मतलब है कि हमारा बेस कैनवास जिसके ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, तो वो हम
जो गोल्ड और सिल्वर के थ्रेड्स बनाए, फिर हम वो लेके सिल्क के ऊपर उससे एम्ब्रॉयडरी करते हैं. इट इज़ ऑल्सो मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ प्योर गोल्ड. Real zari sarees are soft and smooth to touch and reflect light to shine brilliantly. They are very expensive. तो ये हम ज़री वर्क इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मेथड से भी कर सकते हैं. और जो ज़री साड़ीज़ होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती है अगर आप उनको टच करो तो, और उनमें प्योर मेटल्स यूज़ करे हैं तो उसकी एक अपनी अलग शाइन होती है जो बहुत अच्छी दिखती है. और क्योंकि इसमें प्योर मेटल्स यूज़ करे गए हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव होती है और ये बहुत हैवी होती है अगर आप इसकी साड़ी पहनो तो. Imitation zari. What do we mean by imitation zari? Generally, this work is done by copper threads instead of gold and silver. It is much cheaper than real zari due to change of metallic threads. In this work, electroplating method can also be used. तो इमिटेशन ज़री क्या है? तो ये वर्क रियल ज़री की तरह ही करा जाता है, बस खाली इसमें हम मेटल्स चेंज करते हैं. इंस्टेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वी यूज़ कॉपर. ये ज़री बहुत ज़्यादा सस्ती है कंपेयर टू रियल ज़री से, क्योंकि इसमें हमने सस्ता मेटल यूज़ करा है. और ये वर्क हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड की तरह भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से भी कर सकते हैं. ये जो साड़ी होती है, ये वर्क की साड़ी होती है, बहुत हल्की होती है कंपेयर टू रियल ज़री, क्योंकि उसमें गोल्ड और सिल्वर यूज़ करा है, इसमें कॉपर यूज़ करा है. मेटालिक ज़री. व्हाट डू वी मीन बाय मेटालिक ज़री? It replaces traditional metals like gold, silver, and copper. It is resistant, durable, and light in weight. It's non-tarnishing and maintains its luster for a considerable period of time. तो मेटालिक ज़री अगर हम इजी लैंग्वेज में बोलने जाए तो ये आर्टिफिशियल ज़री है. ये ट्रेडिशनल मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर और कॉपर को रिप्लेस करके हम ये ज़री एलॉयज़ से करते हैं. एलॉयज़ मतलब कोई दो मेटल का मिक्सचर, कोई दो मेटल को मिक्स करके फिर उससे हम ये ज़री करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम ये ज़री सिल्क क्लॉथ पे ही करें, ये कोई और क्लॉथ पे भी कर सकते हैं हम. जैसा कि इसमें मैंने बताया, इसमें हम एलॉयज़ का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही लाइट वेट है और ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सकती है, क्योंकि हम इसमें सिल्क क्लॉथ का यूज़ नहीं कर रहे हैं. सिल्क क्लॉथ ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर हम रख देते हैं तो उसके रेशे निकलने लग जाते हैं, तो हम वो क्लॉथ ज़्यादा नहीं पहन सकते क्योंकि उसके रेशे निकल आते हैं और वो पहनने में. Hello, I'm Archie and today we will talk about metal work. The word itself shows that we work on different types of metal and create different types of metal products. ये जो वर्ड है मेटल वर्क, वो अपने आप में ही बताता है कि हम डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स का यूज़ करके एक डिफरेंट या एक अलग मेटल का प्रोडक्ट बनाते हैं. इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ एन आर्ट ऑफ इंडिया. ये बहुत ही पुराना आर्ट फॉर्म है इंडिया का. इससे पहले वुड वर्क आ चुका है, ये उसके बाद आया है. क्राफ्टमैन्स हैव बीन यूजिंग डिफरेंट मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड सिल्वर. जो ये वर्क करते हैं वो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के मेटल यूज़ करके ये वर्क करते हैं. दिस वर्क इज़ डन बाय स्टिकल, ड्रिल एंड नीडल एक्सेट्रा. इट इज़ ऑल्सो डन ऑन वेसल्स, यूटेंसिल्स, आइडल्स और पॉट्स. ये वर्क जो है वो सिर्फ बर्तनों पे ही नहीं होता है, ये वर्क मूर्तियों पे भी होता है, मटकों पे भी होता है. मेटल्स वर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स ऑन ज्वेलरीज. ये मेटल्स और ये मेटल वर्क ज्वेलरीज पे भी करा जाता है. The art of the metalwork is known to Indians for almost 5,000 years from now. Traditionally, craftsmen have been using different metals and alloys. 5,000 साल हो गए हैं आज इंडिया में जब मेटल वर्क आया था. और अगर हम इसको ट्रेडिशनली करें तो इसमें हम सिर्फ प्योर मेटल्स का ही यूज़ करते हैं. लेकिन आज जो मेटल वर्क्स के पॉट्स या से कुछ भी स्कल्पचर्स मिलते हैं
उनमें एलॉयज़ यूज़ करा होता है वो प्योर मेटल्स के नहीं होते हैं। In Ladakh, traditional vessels are made from iron and brass. In Delhi, the iron pillar. In Nasik, elaborate floral are imprinted on copper and silver. In Mordabad and Banaras, many types of vessels from brass. In Jaipur, brass engravings and lacquering and bronze sculptures. And in Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Orissa and Tamil Nadu, metalwork is also flourished there. यहाँ पे कुछ स्टेट्स और सिटीज़ के नाम हैं जहाँ पे अच्छा नहीं लगता, तो ये सारी में ऐसा नहीं है। हम ये लंबे टाइम तक पहन सकते हैं और ये अपनी चमक ज़्यादा लंबे टाइम तक बना सकता है और ये हल्की है पहनने में और ये सस्ती भी है क्योंकि इसमें हम एलॉयज़ का यूज़ करते हैं और आज के टाइम पे ये ज़री की साड़ीज़ ज़्यादा बिकती है कंपेयर टू रिच एंड इमिटेशन ज़री की साड़ीज़। लेट्स टॉक अबाउट वुडन वर्क। Wooden work or woodworking is the activity or skill of making items from wood and includes cabinet making, wood carving, joinery, carpentry and wood turning. वुडन वर्क या वुड वर्किंग ये एक कला है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं वुड में से, जो कि है कैबिनेट बनाना, वुड को कार्व करना, कारपेंट्री करना। और यहाँ पे जॉइनरी का मतलब है कि दो रूम्स या कोई भी दो हॉल को जॉइन करने के लिए जो हम एक पैसेज बनाते हैं या स्टेयर्स बनाते हैं उसको जॉइनरी कहते हैं। और वुड टर्निंग मतलब एक कोई वुड के ब्लॉक में से हम एक ज्योमेट्रिकल शेप निकालते हैं, कार्व करके निकालते हैं, उसे वुड टर्निंग बोलते हैं। Wood was also a part of early human's life. In the development of civilization was closely tied to the development of increasingly greater degrees of skill in working with these materials. तो वुड अर्ली ह्यूमंस की लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट था क्योंकि वुड से ही उनकी लाइफस्टाइल में डेवलपमेंट आया था। Other than early times, wood carving exists in India from ancient times. अर्ली टाइम्स को छोड़ के अगर हम देखें कि वुड कार्विंग इंडिया में कब से है तो वो एंशियंट टाइम से है। वुड कार्व टेम्पल्स आर सर्वाइविंग टिल डेट इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। आज भी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में वुड कार्व टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। ईच रीजन हैज़ डेवलप्ड इट्स ओन स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड कार्विंग्स। इंडिया में हर एक रीजन ने अपनी एक स्टाइल चूज़ कर ली है वुड को दिखाने के लिए। Here are some examples where wooden work is very much famous. In North India, carved wooden doors and windows with brass inlay work. In Kashmir, carved ceiling work, also known as pinjar, is very famous. In Punjab, old Havelis have carved doors and windows. In Assam, carved mythical figures and many more. In Bengal, large wooden pillars with incredible carving. In Gujarat, houses have carved facades and balconies with carved and performed patterns are also famous. In Tamil Nadu, wooden Tanjore dolls are very well known. In Andhra Pradesh, Tirupati red dolls are famous and many more states have incredible wood carvings.